Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 10, the tense. So let's start the chapter. Chapter number 10, the tense. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. A, B, C. तीन कॉलम यहाँ पे गिवन है, पढ़ते हैं. He plays Ludo. They play Ludo. They ate food. We ate food. I shall go to school. He will go to school. In the group A, the verb plays and play tell us that the action is taking place in present time. These verbs belong to the present tense. ग्रुप ए में जो वर्ब है प्लेज या प्ले, ये हमें बता रही है कि जो एक्शन है, मतलब जो वर्ब है, जो काम हो रहा है, वो कब हो रहा है? वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है. इसीलिए ये वर्ब किससे बिलोंग करती हैं? प्रेजेंट टेंस से. In group B, the verbs ate and ate tell us that the action has already taken place in the past time. These verbs belong to the past tense. Second group में, B group में जो verbs हैं ate, वो हमें बता रही हैं कि जो action है वो already past में हो चुका है, तो ये belong करती हैं past tense से. In group C, the verbs shall go and will go tell us that the action will take place in the coming time. These verbs belong to the future tense. और थर्ड ग्रुप में जो shall go और will go verbs हैं, ये हमें बता रही है कि जो एक्शन है वो अभी आने वाले टाइम में होगा, तो ये verbs belong करती हैं future tense से. Thus there are three tenses. तीन तरीके के tenses होते हैं. First, present tense. Second, past tense. Third, the future tense. Verbs have different forms in different tenses. वर्ब की फॉर्म अलग अलग टेंसेस में अलग अलग होती हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं हम द सिंपल टेंसेस. रीड एंड अंडरस्टैंड. पढ़ते हैं और समझते हैं. फर्स्ट, ही राइट्स एन एसे. सेकंड, ही रोट एन एसे. थर्ड, he will write an essay. In the first sentence, the verb writes tell us that the action is taking place in the present time. Such a verb belongs to the simple present tense. पहले सेंटेंस में जो राइट्स लिखा है ये हमें बता रहा है कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, तो इसलिए जो वर्ब है राइट्स ये बिलोंग करती है सिंपल प्रेजेंट टेंस से. In the second sentence, the verb wrote tells us that the action has already taken place in the past time. Such a verb belongs to the simple past tense. सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ब है wrote, ये हमें बता रहा है कि जो एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, तो ये वर्ब बिलोंग करती है पास्ट टेंस से. In the third sentence, the verb will write tells us that an action will happen in the future time. Such a verb belongs to the simple future tense. थर्ड सेंटेंस में जो वर्ब है will write, ये हमें बता रही है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा, तो ये वर्ब बिलोंग करती है सिंपल फ्यूचर टेंस से. सेकेंड हम पढ़ते हैं द कंटिन्यूअस टेंसेस. रीड एंड अंडरस्टैंड. पढ़ते हैं और समझते हैं. फर्स्ट, दीपा इज रीडिंग अ बुक. सेकेंड, दीपा वॉज रीडिंग अ बुक. थर्ड, दीपा विल बी रीडिंग अ बुक. In the first sentence, the verb is reading tells us that an action is continuously going on in the present time. Such a verb belongs to the present continuous tense. पहले सेंटेंस में जो is reading लिखा है इसका मतलब जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये जो is reading verb है ये बिलोंग करती है present continuous tense से. In the second sentence, the verb was reading tells us that an action was continuously going on in the past time. Such a verb belongs to the past continuous tense. Second sentence में जो verb है was reading, ये हमें बता रही है कि जो action है वो past में continuously चल रहा है, तो ये verb belong करती है past continuous tense से. Next, in the third sentence, the verb will be reading tells us that an action will be continuously going on in the future time. Such a verb belongs to the future continuous tense. थर्ड सेंटेंस में जो वर्ब है will be reading, ये हमें बता रही है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब जब हम फ्यूचर में उसे करेंगे तो वो कंटिन्यूसली होगा, तो इस तरीके की वर्ब बिलोंग करती हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से. नेक्स्ट है द परफेक्ट टेंसेस. रीड एंड अंडरस्टैंड. अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में. ही हैज प्लेड फुटबॉल. ही हैड प्लेड फुटबॉल. He will have played football. In the first sentence, the verb has played tells us that an action has been completed
in the present time, such a verb belongs to the present perfect tense. पहले सेंटेंस में जो वर्ब है हैज प्लेड, ये हमें बता रहा है कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो गया है, तो ये वर्ब बिलोंग करती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से. Then in the second sentence, the verb had played tells us that an action had been completed in the past time. Such a verb belongs to the past perfect tense. सेकेंड सेंटेंस में जो हैड प्लेड है ये हमें बता रहा है कि जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, तो ये वर्ब बिलोंग करती है पास्ट परफेक्ट टेंस से. In the third sentence, the verb will have played tells us that an action will be completed in the future time. Such a verb belongs to the future perfect tense. और थर्ड सेंटेंस में जो विल हैव प्लेड है ये हमें बता रहा है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होगा, तो ये वर्ब बिलोंग करती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से. द फॉलोइंग टेबल शोज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन दीज थ्री टेंसेस. अब इस टेबल में हम वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे कि कौन से टेंस में कैसे वर्ब यूज होती है. यहाँ पर टेंस दिया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. यहाँ पर टेंसेज है सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट. अब सिंपल में देखिए आप, ही के साथ सिंगुलर वर्ब आई स्लीप. कंटिन्यूअस में ही इज स्लीपिंग, प्रेजेंट में इज आता है और वर्ब में आईएनजी लगता है. परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट. पास्ट, पास्ट में सिंपल में सेकेंड फॉर्म ही स्लेप्ट. कंटिन्यूअस में ही वॉज स्लीपिंग, वॉज वर आता है और वर्ब में आईएनजी लगता है और परफेक्ट में हैड आ जाता है. फ्यूचर टेंस में ही विल स्लीप, विल शैल आता है और वर्ब एज इट इज आती है ही विल बी स्लीपिंग. कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी और वर्ब में आईएनजी, और परफेक्ट में विल हैव शैल हैव और वर्ब की सेकेंड फॉर्म. नाउ इट्स टाइम टू आंसर. ए, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट. ओएमआर शीट में हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे. फर्स्ट, द टेंसेस आर ऑफ डैश टाइप. टेंसेस कितने तरीके के होते हैं? थ्री टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो ए. नेक्स्ट, इन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट वी ऐड टू द वर्ब. अगर सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर टेंस है तो उसमें वर्ब में हम क्या ऐड करते हैं? एस. नेक्स्ट, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन. वर्ब की पास्ट टेंस फॉर्म किस में यूज होती है? पास्ट टेंस में. सी. नेक्स्ट, दिस वर्ब शोज प्रेजेंट टाइम. यहाँ पर कुछ वर्ब्स गिवन है, आपको बताना है कौन सी प्रेजेंट में है. राइट, रोट, रिटन. राइट. नेक्स्ट, दिस वर्ब शोज पास्ट टेंस. कौन सी वर्ब पास्ट टेंस शो कर रही है? अराइव्ड. बी. नेक्स्ट, दिस वर्ब शोज कमिंग टाइम. कौन सी वर्ब यहाँ पर फ्यूचर टाइम शो कर रही है? तीनों, विल गो, शैल गो, विल सिंग. ऑल ऑफ दीज. नाउ बी, fill in the blanks with the simple present tense of the verbs given in bracket. आपको blanks में simple present tense मतलब simple present tense verb की fill करनी है, जो ब्रैकेट में verb given है उसमें. फर्स्ट है we dash to our school daily. यहाँ पर क्या है? we क्या है? प्लूरल, तो verb भी क्या आएगी? प्लूरल. we go to our school daily. सेकेंड, he dash fruits and vegetables. यहां पर आएगी सिंगुलर फॉर्म, तो he cuts. नेक्स्ट, शिवा एंड शिवी dash their lessons. यहां पर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो आएगी learn. इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे. Now, next exercise. Fill in the blanks with the past continuous tense of the verbs given in bracket. ब्रैकेट में जो verbs हैं उन्हें हम past continuous tense में करके blank में fill करेंगे. First, निधि dash a poem. अब यहाँ पे लिखा है compose. past continuous में क्या आता है? was were आता है और verb में ing लगता है. तो यहाँ पर निधि singular है तो यहाँ पर क्या आएगा? निधि was. और कंपोज का हो जाएगा कंपोजिंग. निधि वॉज कंपोजिंग अ पोएम. नेक्स्ट, वी डैश इन द मॉर्निंग. यहाँ पर वी क्या है? प्लूरल है तो वी वर.
और वॉक का हो जाएगा वॉकिंग। नेक्स्ट ही सिंगुलर है तो ही वॉज, गो का हो जाएगा गोइंग। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, fill in the blanks with the future perfect tense of the verb given in the bracket। अब आपको ब्लैंक्स में फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म फिल करनी है वर्ब की। फर्स्ट, द ट्रेन डैश फ्रॉम द स्टेशन। अब यहाँ पर लिखा है डिपार्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव या शेल हैव, तो यहाँ पर आ जाएगा द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, वर्ब की पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिपार्टेड। नेक्स्ट, the mason dash building, the mason will have completed। नेक्स्ट, we dash the food, तो यहां पर आएगा we shall have eat, ate, eaten, थर्ड फॉर्म हो गई eaten the food। इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, fill in the blanks with the verbs of future tense given in bracket। अब आपको वर्ब का फ्यूचर टेंस यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट, आई डैश अ पोयम, तो यहाँ पर आ जाएगा आई विल, फ्यूचर में हम विल लिखते हैं तो आई विल राइट अ पोयम। सेकेंड, टीचर विल टीच, टीचर विल टीच द ग्रामर। नेक्स्ट, थर्ड, इट विल बी संडे टुमारो। इसी तरह से इसके बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 10 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको टेंसेस समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।